Hello students, good morning everyone. Today we are going to study about monopolistic competitions. So first one, meaning of the monopolistic competition. Monopolistic competitions is a very realistic competitions in a nature. Explain that. Explain monopolistic competitions means some features of the perfect competition and some features of the monopoly competitions. To make a new market means combine both are the combinations of the perfect and monopoly market, and to make the new market it is also known as the monopolistic competitions, and therefore monopolistic competitions is a very realistic in a nature and living of the life. So monopolistic competitions explained by it is very dynamic and most explained means economist by the Professor Chamberlain. So Professor Chamberlain explained in his book means Theory of Monopolistic Competitions and published in 1933. जो हमारे डायनामिक इकोनॉमिस्ट है प्रोफेसर चैम्बरलेन, इन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अपने टेक्स्ट बुक में मीन्स अपने बुक में जिनका नाम है थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इसमें एक्सप्लेन की है। कब? 1933 में। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम लोगों को मोनोपोली एंड परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स के फीचर्स कंबाइन देखने के लिए मिले। ठीक है, सो मुझे लगता है यहाँ तक आपको मीनिंग समझ में आया होगा। सेकंड वन है डेफिनेशंस ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर चैम्बरलेन। Monopolistic competitions refers to competitions among a large number of sellers producing close but not perfect substitute. Professor Chamberlain says that monopolistic competitions there is a large number of sellers and producing product is a close substitute product but not a perfect substitute product. Means इन्होंने जो भी प्रोडक्शंस किए हैं प्रोडक्ट वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट है, बहुत क्लोज सब्स्टिट्यूट है बट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है. सो इट एक्सप्लेन द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स. सो नेक्स्ट वन, फीचर्स ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स. सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स एक्सप्लेन द 7 फीचर्स. वन बाय वन एक्सप्लेन डिटेल इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स features. First one point है fairly large number of seller. In monopolistic competitions there are a fairly large number of a seller. It means less than perfect competitions market. Less than seller which perfect competition. जो हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स एक्सप्लेन द लार्ज नंबर ऑफ सेलर मीन्स अनलिमिटेड सेलर, बट दिस कॉम्पिटिशन्स इज अ लेस दैन परफेक्ट कॉम्पिटिशन सेलर एंड इट सिंपली एक्सप्लेन द फेयरली लार्ज नंबर ऑफ अ सेलर एंड देयरफॉर ईच सेलर हैज़ लिमिटेड कंट्रोल ओवर द सप्लाई ऑफ कमोडिटी but it has complete control over his brand. For example, soap, detergent, automobile, cars, pens, mobiles, etc. हम लोग वहाँ पर अपने अपने एक ट्रेडमार्क, ब्रांड, पेटेंट ऐसे कई चीज़ों की वजह से क्या देख रहे हैं कि इनका कंप्लीट कंट्रोल अपने ब्रांड के ऊपर होता है. मीन्स नो एनी वन पर्सन कॉपी दिस ब्रांड. So therefore it has the complete control and therefore it has most important features. Monopoly means enjoy the monopoly. Enjoy the monopoly. Why? Because it has the complete control over its brand. And other side it has faced the competitions. So why? Because लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी. यहाँ पर सेलर भी ज़्यादा है, उसके साथ में हम लोग देखेंगे. सो यहाँ पर जो कमोडिटीज़ है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है एंड देयरफॉर इट हैज़ फेस द कॉम्पिटिशन्स बट इट हैज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंटेंट ऑफ द फेयरली लार्ज नंबर ऑफ द सेलर. ओके, सेकंड वन पॉइंट है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ द बायर. In monopolistic competitions, there are a fairly large number of the buyers. It means no any one buyer can impact of the market price. For examples, individual buyers change the demand, means change its demand. For examples, more demand, less demand, but it has not impact of the price. So
It has simply explained a fairly large number of buyers. It has same explanations of the perfect competitions. Firstly, explain both are the features of monopolistic competitions. So, second means large number of buyers, explain the features of perfect competitions. Third one point, product differentiations means vastu bhed. Product differentiations, it is the most important features of the monopolistic competitions. Product differentiations means each producer producing the product different to another farms या another sellers. It means each farms producing production is a differentiated productions. So which content is a differentiation? For example, trademark, for example, brand, for example, copyright, for example, patent, explain the packing, explanations the container, etc. And another product differentiations, it explain the shape, size, color, design, quality, etc. For example, soap. So explain many soap. For example, Lux soap, Dove soap, etc. So these soaps are differentiated. For example, different color, different size, different shape, different quality. It has the most important of the product differentiations. Please explain the product differentiation is a most important features. It means close substitute its forms but cross elasticity of demand is a very high. हम लोग यहाँ पर देखेंगे इनके प्रोडक्शंस क्लोज सब्स्टिट्यूट है, एक दूसरे से प्रोडक्शन सब्स्टिट्यूट है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग डिटर्जेंट की भी बात करते हैं, हमें व्हील मिलेगा देखने के लिए, निरमा मिलेगा, सर्फ एक्सेल मिलेगा, तो ये एक दूसरे से सब्स्टिट्यूट है. उतना ही नहीं, क्लोज सब्स्टिट्यूट है. बट जब हम लोग एक का दूसरे के साथ में क्रॉस इलास्टिसिटी देखेंगे, सो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वहाँ पर एक्सप्लेन द वेरी हाई. फॉर एग्जाम्पल्स वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक, हैंडसेट मीन्स मोबाइल हैंडसेट एक्सेट्रा, हमें कई एग्जाम्पल्स दिखेंगे. जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइज देख रहे हैं या फिर मोबाइल सेट देख रहे हैं या फिर कोई अदर एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. सो हमें क्या दिखेगा इसमें, वहाँ पर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ वेरी हाई एंड क्लोज सब्स्टिट्यूट द कमोडिटी. ठीक है, मुझे लगता है ये फीचर्स आपको समझ में आया होगा कि वहाँ पर हर प्रोड्यूसर्स का प्रोडक्शंस उसके ही ग्रुप में दूसरे प्रोडक्शन से डिफरेंट होता है. क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि वहाँ पर एक तो उन्हें लीगल मोनोपोली मिलती है. जैसे फॉर एग्जांपल्स कॉपीराइट रहेगा, पेटेंट रहेगा, ट्रेडमार्क रहेगा, ब्रांड रहेगा, ये उनकी लीगल मोनोपोली हो गई. तो दूसरे टाइप में हम लोग देखेंगे उनके कंटेंट में कमोडिटी में चेंजेस होता है. फॉर एग्जांपल शेप चेंज होता है, कलर रहेगी, साइज़ रहेगा, डिज़ाइंस रहेगी, पैकिंग्स रहेंगे, या फिर वहाँ पर जो कंटेंट्स का प्रेजेंटेबल है वो रहेंगे, या फिर उसके अंदर के फीचर्स रहेंगे. सो दीज आर द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस. सो इट इज़ एक्सप्लेन द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस. क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ अ वेरी हाई. ठीक है. सो नेक्स्ट वन पॉइंट है, फोर्थ वन, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. In monopolistic competitions, any firms enter in the market. He want to get the profit, so easily enter in the market, but follow the government's rules and regulations means policy या any others regulations. या oppositely हम लोग देखेंगे any firms face the difficulty, so therefore easily exit of the market. किसी को वहाँ पर बार बार मार्केट में डिफ़िकल्टी हो रही है, सो वहाँ पर वो मार्केट से बाहर भी निकल सकता है. इसका मतलब क्या हो गया, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. और हमें यहाँ पर भी लगभग दिख रहा है कि जैसे ओलिगोपोली का भी कुछ एक्सप्लेनेशन है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन्स का एक्सप्लेनेशन है, तो इसकी वजह से वहाँ पर मोनोपोलिस्टिक को सबसे ज़्यादा रियल मार्केट कहा जाता है. ठीक है. फिफ्थ वन पॉइंट है सेलिंग कॉस्ट. अभी हम लोग सेलिंग कॉस्ट की बात देखेंगे. सो productions means product differentiation and selling cost, it has such a unique features of the monopolistic competitions. वाकई में ये एक यूनिक फीचर्स है. तो ये सेलिंग कॉस्ट होता क्या है? सो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स आर peculiar to the monopolistic means selling cost. So selling cost वहाँ पर incur the firms
create more demand and that's affect increase the value of selling. ये सेलिंग कॉस्ट किसका होता है? सो फर्म्स का होता है, एक सेलर्स का होता है, प्रोड्यूसर्स का होता है. सो क्यों वहाँ पर ये सेलिंग कॉस्ट किया जाता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? टू क्रिएट मोर डिमांड. ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड बढ़नी चाहिए, इसके लिए सेलिंग कॉस्ट वहाँ पर किया जाता है. तो उसकी वजह से क्या और फ़ायदा हो सकता है? सो फ़ायदा क्या हो सकता है हम लोगों को? सो उसका वैल्यू सेलिंग का बढ़ता है, मीन्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ सेलिंग. So what types of the selling cost? Just for examples of the advertisement. So advertisement, it has the most important, attractive and aggressive features in this market and selling of the commodity. So through the newspaper, televisions, या फिर वहाँ पर पोस्टर्स, मैगजीन, रेडियो एक्सेट्रा. उसके भी साथ में हम लोग देखेंगे ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स, या फिर वहाँ पर एग्जीबिशंस, या फिर विंडो डिस्प्ले, या फिर फ्री गिफ्ट, या फिर नेक्स्ट मंथ वहाँ पर रहेगा फ्री सैंपल एक्सेट्रा. सो कई तरीके से अलग अलग सेलिंग कॉस्ट किया जाता है. कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ फ्री दिया जाता है, कभी कभी इतना प्रोडक्शंस आप लोग परचेस करते हो सो कुछ गिफ्ट दिया जाता है, या फिर वहाँ पर एग्जीबिशंस रखा जाता है कि जिसके द्वारा वहाँ पर क्या हो जाए, इंसेंटिव बढ़ जाए और प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके. तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं, सब सेलिंग कॉस्ट है. और सेलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, और ये सबसे ज़्यादा आज की डेट की क्या है, इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है. एंड उसी रीजंस की वजह से इस मार्केट को रियलिस्टिक मार्केट कहा जाता है. ठीक है. 6th वन पॉइंट है क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी. इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशंस इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल different brand, for examples brand of the soap means Lux soap, close substitute Dove soap, Dove soap close substitute another soap etc. या फिर फॉर एग्जाम्पल्स आप लोग अदर देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रांड बिस्किट, सो गुड डे क्लोज सब्स्टिट्यूट हाइड एंड सीक, या फिर एक्सेट्रा. या फिर आप लोग वहाँ पर ऑटोमोबाइल्स, कार, कोल्ड ड्रिंक, मोबाइल्स, सो मेनी कमोडिटीज इट हैज़ एक्सप्लेन द क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी एंड देयरफॉर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स मार्केट इज़ अ क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी मार्केट. ठीक है. मुझे लगता है ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा. ऐसे कई कमोडिटी हम लोग वहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं. एंड लास्ट वन पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. Concept of group features of the monopolistic competitions and explained by Professor Chamberlain. So Professor Chamberlain explained that concept of group means industry means number of firms. अभी हम लोग उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक लिया है. इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ फर्म्स ऐड होते हैं. सो फर्म्स का मतलब क्या होता है? फर्म्स मीन्स प्रोड्यूस यूनिक प्रोडक्शंस या फिर सेम प्रोडक्शंस. फर्म्स का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्शन. जैसे हम लोग कोई भी बात ले सकते, जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉथ ले रहे, सिल्क क्लॉथ ले रहे, सो ऐसे कई वहाँ पर अलग अलग क्या है, सेलर से प्रोड्यूसर है, वो एक ही टाइप्स का क्लॉथ बनाते हैं. तो ये क्या हो गया? एक फर्म्स हो गया, मीन्स यूनिक या फिर सेम प्रोडक्शन हो गया. बट मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. वाई? बिकॉज एक्सप्लेन close commodity means same commodity but different commodity. Just for examples, mobile as the same means mobiles, features of the mobile, but it has totally means वहाँ पर some differentiations. for examples कलर्स रहेगा, साइज़ रहेगी, फीचर्स रहेंगे एक्सेट्रा रहेगा. इसका मतलब क्या हो गया? मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज अ क्लोज सब्स्टिट्यूट डिफरेंटेड कमोडिटी एंड देयरफॉर इट हैज़ एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप. इसी रीज़न की वजह से उन्होंने क्या कहा है, उसे एक ग्रुप का कॉन्सेप्ट दिया है, ना कि फर्म्स का कॉन्सेप्ट दिया है. ठीक है. मुझे लगता है दोनों का मतलब समझ में आया होगा. ग्रुप का मतलब क्या है? एक ही टाइप्स के गुड्स है बट उसमें कुछ डिफ्रेंसेशन है, तो ये हम लोग क्या बना सकते हैं? ग्रुप बता सकते हैं. ठीक है. जैसे आपका क्लास रहेगा, क्लास में सभी को पढ़ना है, सबका एक ही वहाँ पर एम्स रहता है,
बट हम लोग देखेंगे कि कुछ उसमें डिफ्रेंसिएशंस रहता है, ठीक है। सो उसके एग्जांपल्स भी कुछ दिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन्स रहेगा, मेडिसिन्स काम तो सेम कर रहा है, जैसे कुछ वहाँ पर बुखार रहेगा या फिर कुछ सर्दी खांसी रहेगी, बट वहाँ पर अलग अलग, वहाँ पर जब हम लोग ब्रांड का मेडिसिन्स देखते हैं सो वहाँ पर कुछ डिफ्रेंसिएशंस उसमें आ जाता है। उसके साथ में ऑटोमोबाइल्स देख सकते हैं, सीमेंट दे सकते हैं। तो ये सब क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट कमोडिटी बट डिफरेंट कमोडिटी, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। सो कोई भी प्रॉब्लम है सो वहाँ पर आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर मुझे लग रहा है कि जितना चाहिए उतना आप लोग वीडियो देख नहीं रहे हैं, उसे अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये आप करेंगे तो ही लास्ट में हम लोग वाकई में आप लोगों को हेल्प कर पाएंगे। सो एक्चुअली हमें सामने से दिखता है जब हम लोग वीडियो चेक करते कितने स्टूडेंट ने देखा है। सो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, समझ लो, नहीं कहीं पे समझ में आ रहा है सो वापस उसे सुनो, तो आप लोगों को हो सकता है वो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और उसके साथ में जो आप लोगों को नीचे एक चार्ट दिया है वो चार्ट आपको कंप्लीट करना है। बहुत इजी चार्ट है। जैसे फर्स्ट वन दिया है उन्होंने जेमिनी ऑयल, तो वहाँ पर अलग आगे दिया है सब्स्टिट्यूट कमोडिटी। जेमिनी ऑयल के कौन कौन से ऑयल सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है। अभी जेमिनी ऑयल किस टाइप का ऑयल है तो उसी टाइप में ऑयल डालिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि बालों का ऑयल, खाने का ऑयल, ये ऑयल ऐसे मिक्स मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये कंप्लीट करना है। थैंक्स।